Assalamualaikum and welcome to the very first video lecture of grade 5. I am your computer teacher from Honors Kindergarten and Secondary School Lahore. In this video, student, I will explain two units. Unit number 1, evolutions of computer. Unit number 2, computer memory. So let's start our first unit, evolution of computers, on page number 5 to 13. Students, in this unit, I will explain history of computers, early calculating devices, generations of computer, and types of computer. So let's start our first topic, that is history of computer. Dear students, you all have learned about the computer and its different parts in your previous classes. The computer helps us in doing number of tasks as well as many calculations easily. You can also perform many other activities on computer. But you have ever imagined how computers were developed and evolved over the years to what you presently see in front of you? In the early days, people used stones, sticks, or bones for counting. It was not possible to do big calculations using them. Our second topic is early calculating devices. Students, here are some calculating devices. The first one is abacus, Pascaline, Napier-Bonds, Leibniz calculator, Jacquard's loom, difference engine, and analytical engine. Abacus. First calculating device, it was invented by Chinese 5000 years ago. It is an instrument containing beads used for simple calculations like addition and subtraction. Dear students, you can see a rectangular frame here. It has a series of vertical rods on which a number of wooden beads are allowed to move up and down freely. Let me give an example. Students, अगर एक इंसान के पास 3 goats हैं और second के पास 5, then we will count it like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. It means ये मशीन हमारे पास एडिशन के लिए यूज होती है. सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होती है? लेट्स सी. अगर एक इंसान के पास 3 goats है और सेकंड के पास 5, लेकिन एक गोट उसकी मिस हो गई या लॉस्ट हो गई है, देन हम एक बीट को सेपरेट कर लेंगे और दोबारा काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इट्स मीन अब हमारे पास 7 गोट्स हैं टोटल. Pascaline. Blaise Pascal, a French mathematician, invented Pascaline in 1642. It can only add and subtract. Pascaline was made up of a rectangular box with 8 movable wheels. Pascaline एक ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने ये डिवाइस इन्वेंट की. ये डिवाइस ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए यूज की जाती है. इसके ऊपर 8 मूविंग व्हील्स लगे होते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं. Napier-Bonds. Invented by John Napier, it was mainly used to perform multiplication and division tasks. This device consisted of a board with a rim. The board's left edge was divided into 9 squares having the number 1 to 9. Napier-Bonds एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टास्क के लिए यूज होती है. इससे पहले हम जो 2 डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती है. लेट्स सी इट्स वर्किंग, कि हम कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इस डिवाइस को यूज करते हुए. हियर यू कैन सी हमने लेफ्ट एज पे नंबर राइट किए हैं 1 to 9 और टॉप एज पे हमने नंबर राइट किया 1 to 9 एंड लास्ट कॉलम हमारे पास है 0 का. अब इसकी वर्किंग कैसे, अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12. 2 1 प्लेस पे है और 1 10 प्लेस पे. सो वी विल राइट 2 on the lower part and 1 on the upper part. So 3 into 4 is equals to 12. 10 प्लेस वाला नंबर हम ऊपर लिखेंगे और 1 प्लेस वाला नंबर नीचे. ऐसे ही हमने बाकी मल्टीप्लीकेशन भी करनी है. Leibniz calculator. Invented by Leibniz, it was mainly used to perform multiplication and division tasks. Improved version of Pascaline adding machine. This was mainly made up of steel and copper. Leibniz कैलकुलेटर भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन टास्क के लिए ही यूज होता है. ये पास्कलिन मशीन का इम्प्रूव्ड वर्जन है. Jacquard's loom. Invented by Joseph Mary Jacquard in 1801. It was the first machine to use punch card to control a sequence of operation. ये एक ऐसी मशीन है जिसमें फर्स्ट टाइम पंच कार्ड यूज किया गया. Now the question is, what is punch card? A punch card is a piece of paper that contains the information for doing calculations.
पंच कार्ड एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर वो सारी कैलकुलेशन लिखी होती है जो हमने परफॉर्म करनी होती है। डिफरेंस इंजन, it was invented by Charles Babbage in 1823. This machine could solve complex functions and calculations of mathematics. अभी तक जो हमने मशीन्स पढ़ी हैं उसमें हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस इंजन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो बाकी मशीन में करना पॉसिबल नहीं था। ये एक एडवांस फॉर्म है और इसका इम्प्रूव वर्जन है बाकी मशीन्स का। Analytical engine, it was invented by Charles Babbage in 1834. Analytical engine was the improved version of difference engine. It was capable of all the basic arithmetic operations and comparison. Difference engine में हम complex functions और complex calculations करते थे। Analytical engine इसका improved version है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को सॉल्व तो कर सकते हैं बट इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी यूज करते हैं और कंपैरिजन भी। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले पर काम कर सकते हैं। कंपैरिजन में अगर हम ये चेक करना चाहें कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर लेस है, इसमें हम ये चीज यूज करेंगे। लाइक अगर एक नंबर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है 9/4 और एक नंबर हमारे पास सिंपल नंबर है लाइक 5, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो उसके लिए हम ये मशीन यूज करेंगे। एनालिटिकल इंजन, बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, दिस मशीन वाज पावर्ड बाय अ स्टीम इंजन। ये एक ऐसी मशीन है जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पर बेस करती है। मीन्स पहले हम इसको डाटा देंगे, इस पर प्रोसेसिंग करेगा, देन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा आउटपुट। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन यूज किया गया। Our third topic is generations of computer. Computer generation was evolved step by step. First generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. First generation from 1951 to 1959. Size, very large system. Technology, vacuum tubes. Processing, very slow. Cost, expensive. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक ऐसी जनरेशन थी जिसमें मशीन का साइज बहुत बड़ा होता था, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की गई, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो थी और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी जनरेशन। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर यूनिवैक 1 एंड एन्यूवैक। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड एन्यूवैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। Here you can see the vacuum tube and example of first generation computer, that is ENIAC. You can see ये साइज में बहुत बड़ा है। Second generation from 1959 to 1965, size smaller than first generation, technology transistors, processing faster than first generation, cost cheaper. सेकेंड जनरेशन एक ऐसी जनरेशन थी जिसमें बनाए जाने वाले कंप्यूटर्स का साइज बड़ा था लेकिन फर्स्ट जनरेशन से छोटा था। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सेकेंड जनरेशन का साइज छोटा था, इसमें ट्रांजिस्टर्स की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर थी फर्स्ट जनरेशन की निस्बत, कॉस्ट चीपर थी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती है। Here you can see transistor and the example of second generation of computer, IBM 1401. Third generation from 1965 to 1971. Size smaller than second generation. Technology ICs, integrated circuits. Processing faster than second generation computer. Cost cheaper than second generation computer. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऐसी जनरेशन थी जिसमें कंप्यूटर्स का साइज सेकंड जनरेशन से भी छोटा था। इसमें आईसीज की टेक्नोलॉजी यूज की गई। आईसीज मीन मतलब एक जगह जहां पर बहुत सी चीजें इकट्ठी की गई हों। यही वजह थी कि इस कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। प्रोसेसिंग स्पीड सेकंड जनरेशन की निस्बत काफी अच्छी थी, फास्टर थी।
कॉस्ट ये चीपर थे सेकेंड जनरेशन की निस्बत. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 360 एंड Apple IIc. Here you can see the integrated circuit and example of third generation Apple IIc. Fourth generation 1971 to present. Size smaller, technology microprocessor, processing faster than third generation computer, cost cheaper than third generation computer. फोर्थ जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो अभी तक यूज किया जा रहा है इन कंप्यूटर्स को. इनका साइज बहुत छोटा होता है बाकी सब जनरेशन की निस्बत. इसमें माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है. प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत फास्टर है. कॉस्ट चीपर है देन third generation computer. Now the question is, what is microprocessor technology? Microprocessors have thousands of transistors. Microprocessor is the most important unit within a computer system and is responsible for processing unique set of instructions. It is designed to execute logical and computational tasks with typical operations such as plus, minus, multiplication and division. Here you can see microprocessors and the example of fourth generation or PC. PC means personal computer. Fifth generation of the computers from 1986 to onward. The goal of fifth generation is to develop the device which could respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. So we can say that the fifth generation computers will have the power of human intelligence. An example of fifth generation computer is robot. The characteristics of the fifth generation computers are: the fifth generation computers uses super large scale integrated chips, and the second one is they have artificial intelligence. Third one is they are able to use more than one CPU for faster processing speed. And the fourth one is fifth generation computers are intended to work with natural language. Types of computer: supercomputers, mainframe computers, mini computers, microcomputers and laptop or notebooks. Supercomputer, most powerful computer in the world, very large storage capacity and high processing speed, used for weather forecasting, launching of rockets and complex scientific calculations. Example of supercomputer is Crave 1. सुपरकम्प्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है. ये वेदर को फोरकास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं या लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स के लिए. साइंटिस्ट इसको कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं. सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल क्रेव 1 है जो आप डायग्राम में देख सकते हैं. Mainframe computers. Mainframe computers are less powerful and less expensive than supercomputers. Mainframe computer ऐसे कंप्यूटर हैं जो सुपर कंप्यूटर्स की निस्बत लेस पावरफुल हैं और इनकी प्राइस भी कम है. Used in big organizations such as bank, large industrial undertaking. Example of mainframe computer is IBM 390. Here you can see the mainframe computer. Mini computers. Mini computers are general purpose computers where a large number of people can work together. Example of mini computer is PDP-8. Microcomputers. Microcomputer is the least expensive of all the computers. It is usually used as a personal computer at home for business purpose. Mini computers ऐसे कंप्यूटर हैं जो बाकी सब कंप्यूटर्स की निस्बत कम महंगे हैं. इसके अलावा ये पर्सनल वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये घरों में किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं. लैपटॉप और नोटबुक्स. लैपटॉप प्रोवाइड्स मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. These are computers that are battery operated and hence can be used anytime. Laptops are small enough to fit on the lap of a user. लैपटॉप हम एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं. इसमें सारी वर्किंग ऐसी है जो पीसी या फिर कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं. इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसको हम चार्ज करके कहीं पर किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं. ये साइज में इतना छोटा होता है कि हम इजीली अपनी लैप में रख के इसको यूज कर सकते हैं. Students, let's have a recap of the lesson that we have learned. Abacus was the first calculating device.
Difference engine was invented by Charles Babbage. Analytical engine was an improved version of difference engine. Its concept was based upon today's computer. Computer development has been categorized into different generations. The different types of computers are supercomputer, mainframe computer, mini computer, and personal computer. Bookwork of unit number 1 on page number 12 and 13. Complete your bookwork and match your answers with the answers given in this video. Question number A is choose the correct option and write in the space provided. Student, इस क्वेश्चन में आपको हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 3 ऑप्शंस दी गई होंगी. आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, देन राइट करना है स्पेस पे जो आपको स्टेटमेंट के साथ प्रोवाइड की गई है. बी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट, हियर आर सम ब्लैंक्स गिवन. You have to choose the correct option and then write in the blank. And the C part is tick the right and cross the wrong. यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है. आपने राइट स्टेटमेंट के आगे टिक और रॉन्ग के आगे क्रॉस का साइन लगाना है. एंड द ई पार्ट इज मैच द कॉलम्स. यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी on page number 14 to 20. In this unit, student, I will explain computer memory, units of memory, memory types, primary memory, secondary memory. So let's start our second topic. The first topic is computer memory. As the word implies, memory means the place where we have to store anything. The capacity of a computer to store data and information is called its memory. ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहां पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, that is called memory. In other words, we can say that memory is any place or location, or it is any physical device capable of storing information, that is called computer memory. Units of memory. Students, as we know that हर चीज का यूनिट होता है. जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं उनके कोई ना कोई यूनिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज का वेट करना चाह रहे हैं, उसका यूनिट हमारे पास केजी होगा, ग्राम होगा. अगर हम टाइम की बात करते हैं, उसको आवर्स या सेकंड में हम देखते हैं. सिमिलरली, अगर हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं या फिर इसकी मेमोरी का यूनिट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा. लेट्स सी, अ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट. कंप्यूटर मेमोरी को मेजर हम करते हैं बाइट में. मीन्स इसका यूनिट क्या होगा. बाइट. अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट. एक बाइट जो मेमोरी का यूनिट है 8 बिट से मिलकर बनता है. मीन्स अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. इसके अलावा इसके बाकी जो यूनिट्स हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, units of memory. Let's discuss about other units of the memory. The smallest unit is bit. 1 byte equals to 8 bits. As we already learned that 1 byte is equals to 8 bits and 1 kilobyte is equals to 1024 bytes, or we can also read it as 1 KB. 1 megabyte equals to 1024 kilobytes and 1 gigabyte equals to 1024 megabytes and 1 terabyte equals to 1024 gigabytes. Memory types. The memory in a computer system can be divided into 2 main parts. The first one is primary memory and second one is secondary memory. Here are 2 types of primary memory, RAM and ROM. And here are some types of secondary memory, hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD and pen drive. Let's discuss primary memory in detail. Primary memory or internal memory is used to store data and programs running in the computer. Primary memory एक ऐसी memory है जो कंप्यूटर में डाटा या प्रोग्राम्स रन करने के लिए असेंशियल होती है. इसको इसके लिए यूज करते हैं. इट इज असेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई डाटा पुट करते हैं, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट दिया जाता है. इस सारे प्रोसीजर के दरमियान में कंप्यूटर को मेमोरी की जरूरत होती है और उस वक्त कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी यूज करेगा. सो वी कैन से दैट इट इज असेंशियल फॉर working of the computer memory. Here are 2 types of the primary memory. The first one is ROM, read it as read only memory, and the second one is RAM.
स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि रोम के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रोम। रीड ओनली मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। मीन्स इसमें डाटा टेम्परेली यूज नहीं कर सकते, इसको ज्यादा टाइम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, हम ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमें इसकी जरूरत होगी हम दोबारा से इस डाटा को यूज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। इट होल्ड्स द डाटा ओनली टेम्परेली। ये एक ऐसी मेमोरी है जो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए डाटा को अपने अंदर स्टोर करती है। सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory is used to store data permanently. The files and programs required to run the computer are stored in secondary memory. Secondary memory एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए, चाहे इसको हम कुछ मंथ्स के लिए कुछ ईयर्स के लिए, वो हम पे डिपेंड करता है हम कब तक उसको यूज करना चाहते हैं। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमें एक मेमोरी की जरूरत होगी, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करेंगे। इसके अलावा पेंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ भी अगर हम करते हैं इंस्टॉल तो उसके लिए हमें मेमोरी चाहिए होगी, सो वी विल यूज सेकेंडरी मेमोरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव। सो लेट्स डिस्कस these devices in detail. The first one is hard disk. Hard disk drive has a very large storage capacity. All the programs like Windows, Logo, Paint required for वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर स्टोर्ड ऑन इट्स हार्ड डिस्क। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कंप्यूटर को कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है, और अगर हमने इसमें कोई विंडो या फिर इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम कौन सी मेमोरी यूज करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। सो हार्ड डिस्क इसकी एक टाइप है जो हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि डाटा को ज्यादा देर के लिए स्टोर कर सके। और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि डाटा को एक तो ज्यादा देर के लिए स्टोर करता है, दूसरे नंबर पे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज यूज्ड टू स्टोर द फाइल्स सेफली। फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी की एक टाइप है, लेकिन ये डाटा को बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकती है और वी कैन से दैट परमानेंटली स्टोर कर सकती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है, ज्यादा डाटा को ये स्टोर अपने अंदर नहीं कर सकती। कंपैक्ट डिस्क और CD। CD हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क एंड यू कैन ओनली रीड डाटा फ्रॉम अ CD-ROM बट यू कैन नॉट राइट ऑन इट। CD या फिर कंपैक्ट डिस्क ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और डाटा को हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, और जो डाटा ऑलरेडी इसमें सेव है उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, हम जस्ट उस डाटा को रीड कर सकते हैं। CDs आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। CD की टू टाइप्स होती हैं, CD-R कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एंड द अदर वन इज CD-RW और कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। Digital versatile disk or DVD. A DVD is very similar to CD but it stores larger amount of data. It is used to store full movies and produce better quality images. DVD बिल्कुल CD की तरह होती है, लेकिन इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि CD में हमने देखा कि CD में हम ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट DVD को अगर कंपेयर किया जाए CD में से तो DVD में हम लोग ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें फुल मूवीज को भी हम स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इमेजेस की। पेन ड्राइव। A pen drive is a small portable storage device. You can easily store and transfer the data from one computer to another with the help of pen drive. एक ऐसी सेकेंडरी डिवाइस है जिससे हम डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बिल्कुल छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपने लैपटॉप से डाटा को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम इस पोर्टेबल डिवाइस को यूज करेंगे, लैपटॉप से डाटा ट्रांसफर करेंगे इस डिवाइस में, देन इस डिवाइस को हम अटैच करेंगे अपने कंप्यूटर से, देन डाटा पोर्टेबल डिवाइस या पेन ड्राइव से हम
ट्रांसफर करेंगे अपने कंप्यूटर में। सो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी यूजफुल। इसके अलावा अगर हम अभी डाटा ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे तो हम इसको अपनी पेन ड्राइव में ही सेव रख सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए। स्टूडेंट्स, let's have a quick recap of the lesson that we have learned. Computer only understands a language called machine language. The computer memory is of two types, primary memory and secondary memory. Primary memory stores data and programs currently in use. Primary memory is of two types, ROM, RAM. ROM is permanent and non-volatile memory. RAM is temporary and volatile memory. Secondary memory stores data and programs permanently for future use. Students, I hope you have completely understood all the concepts related to unit number 2. Bookwork of unit number 2 on page number 18 and 19. Students, complete your bookwork and match your answers with the answers given in this video. The A part is choose the correct option and write in the space provided. Students, यहाँ आपको हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट 3 ऑप्शंस दी जाएंगी। आपने सूटेबल ऑप्शन को टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, देन राइट करना है स्टेटमेंट में। And the B part is fill in the blanks. Here are 5 blanks given. Students, we have to choose the correct option, then write in the blank to complete the statement. And the C part is tick the right and cross the wrong. 5 statements given है, जो statement true है उसको आपने टिक करना है, जो wrong है उसको आपने क्रॉस करना है। And the F part is match the following external devices with their storage capacities. Students, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस दी गई हैं और राइट साइड पे उनकी स्टोरेज कैपेसिटीज बताई गई हैं। आपने जो मैच करती हैं उनको आपस में मैच करना है, देन राइट करना है अपनी बुक पे। मैच द एंड द जी पार्ट इज मैच द फॉलोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।